in the most efficient way possible. And two big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. These are two very, very powerful steps in ensuring that the India alliance defeats the BJP. The election is very, very clear. I did a press conference yesterday, and the nexus between the Prime Minister and a particular businessman is there for every single person to see. I mentioned yesterday in my press conference that the G20 is taking place, and it is very important for India's credibility, our nation's credibility, that the Prime Minister makes his position very clear and begins an inquiry on what has happened with regards to Mr. Adani. The Prime Minister and the BJP are a nexus of corruption, and that is the first thing that the India alliance is going to demonstrate and prove. The idea behind Prime Minister Modi's government is to extract money from the poor people of this country and transfer it to a limited few. And so we are going to propose a clear path, development path. We are going to put together a clear set of ideas that will once again involve the poor people, the farmers, the kisans, the workers in the progress of this country. I'd like to once again thank all the senior leaders, and I'm confident that the India alliance will defeat the BJP. The final thing I'd like to say, of course there are leaders who are much more senior than me, but the real work in this alliance is the relationships that are forged between the leaders of this alliance. And I can say with confidence that these two meetings have done a huge amount in building the rapport between all the leaders and ensuring that all of us work together as one. I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. Thank you very much. Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Laluji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. देखो इंडिया। इसीलिए कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस आरोपी को लेकर किशोर न्याय बोर्ड पहुंची, जहां से 4 सितंबर तक पता चल पाएगा कि आरोपी बालिग है या फिर नाबालिग। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि समीर उर्फ माया दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है और इसीलिए उसने माया के नाम से गैंग बनाया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक माया गैंग में समीर और उसकी उम्र के ही कुछ लड़के शामिल हैं, जो दिल्ली के भजनपुरा और उसके आसपास के इलाके में एक्टिव है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि समीर उर्फ माया दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है, जिसके लिए वो कम उम्र में ही अपराध के रास्ते पर निकल गया था। जांच के दौरान पुलिस को सोशल मीडिया पर उसका किंग माया के नाम से एक अकाउंट मिला। प्रोफाइल में नाम की जगह बदनाम और पते की जगह कब्रिस्तान लिखा नजर आया। उम्र जीने की और शौक मरने की बात भी उसमें लिखी दिखी। इसके अलावा माया की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो हथियारों के साथ दिखा। एक तस्वीर में वो बंदूक के साथ नजर आया, जबकि एक दूसरी तस्वीर में उसके दोनों हाथों में पिस्तौल दिखाई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल को माया ने इसी पिस्तौल से गोली मारी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिल्मों की तरह माया गैंग में शामिल गुर्गों के नाम रखे गए और सूत्र बताते हैं कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या का मास्टरमाइंड समीर उर्फ माया है।
जो काफी वक्त से गैंग बनाकर अपराध की कई घटनाओं को अंजाम देने में जुटा था, ताकि वो और उसके गैंग का नाम जुर्म की दुनिया में छा जाए। पुलिस के मुताबिक आरोपी समीर ने न सिर्फ माया नाम से गैंग बनाया, बल्कि उसने फिल्मों की तरह अपने गैंग में शामिल गुर्गों के नाम भी रखे। जांच के दौरान पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक समीर गैंग का सरगना है और उसने अपना नाम माया रखा, जबकि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद बिलाल गन्नी का नाम मल्लू है। इसी तरह फरार चल रहे गैंग के 3 और गुर्गों के नाम भी फिल्मों की तरह ही रखे गए। एक आरोपी का नाम सुहेल है, जिसे गैंग में बावर्ची का नाम दिया गया, जबकि आरोपी मोहम्मद जुनैद का नाम मामा बिरयानी है। तीसरे आरोपी अदनान को गैंग में डॉन कहकर बुलाया जाता है। वहीं भजनपुरा में हत्याकांड के कुछ ही घंटों के अंदर खुद को नाबालिग बताने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी धमक जमाने के लिए आए दिन पिस्तौल और फायरिंग की वीडियो डाला करता था, जिसे पुलिस ने दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया, वारदात की रात वो अपने साथियों के साथ भजनपुरा में पार्टी कर रहा था, जिसके बाद रात करीब 10:30 बजे 5 लोग घूमने के लिए बाहर निकले। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल सामने से आ रहे मैनेजर हरप्रीत और गोविंद की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके बाद उनके बीच कहासुनी हुई और बात बढ़ने पर उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें हरप्रीत की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के भजनपुरा इलाके में ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मैनेजर हरप्रीत गिल की मामूली कहासुनी के बाद समीर उर्फ माया और उसके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 29 अगस्त की रात आरोपियों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब हरप्रीत अपने रिश्तेदार गोविंद सिंह के साथ घर से कहीं जाने के लिए निकले थे और पुलिस के मुताबिक थोड़ी दूर जाने के बाद ही माया और उसके साथियों ने उन पर फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने की वजह से हरप्रीत गिल की मौत हो गई, जबकि गोविंद घायल हो गए थे। कुछ भी बात नहीं है, आते सिर्फ फायर चालू हुई, मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के सुनते दिमाग में मारी। पुलिस के मुताबिक बाइक निकालने की बात पर माया और उनके साथियों का हरप्रीत गिल के साथ विवाद हो गया था। आरोप है कि उसी दौरान माया ने उन्हें गोली मार दी थी। इस बात पे झगड़ा हो गया कि कौन अपना 2 व्हीलर रोकेगा, साइड में उतर के दूसरे वाले को जाने देगा। सूत्र बताते हैं कि हत्या वाली रात सभी आरोपियों ने जमकर पार्टी की थी और वारदात के वक्त सारे नशे में थे। नशे में चूर उन लोगों ने हरप्रीत गिल की हत्या कर दी और यही वजह रही कि उनके घर वालों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। 2 दिन पहले रात करीब 11:15 बजे 36 साल के हरप्रीत की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उनके घर में हाहाकार मचा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। इंडिया अलायंस